आरजे अमिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल आरजे अमिता की बात पर। प्रीवियस वायु वास नमोयम कनाले आरजे अमिता की बात। और आज मैं रशियन हाउस इसलिए आई हूँ क्योंकि कल है 6 जून और 6 जून को मनाया जाता है पुष्किन जी का बर्थडे, जो रूसी साहित्य के महान कवि साहित्यकार माने जाते हैं। उसी पर हम आज आपके साथ इस वीडियो में बताएंगे आज क्या कुछ खास हुआ रशियन हाउस में। तो बने रहिएगा मेरे साथ क्योंकि मैं हूँ रशिया की दोस्त आरजे अमिता। फ्रेंड्स, अब हम आ गए हैं रशियन हाउस और यहाँ पर तैयारियाँ ज़ोरों शोरों से चल रही है। दिखाती हूँ आपको। लोग भी आना शुरू हो गए हैं। थोड़ी देर में यहाँ इवेंट शुरू होने वाला है पुष्किन पर, जो रशियन लिटरेचर के महान कवि और साहित्यकार माने जाते हैं। मैं लुबिम तक कतोनाशनी लुबेत। इसका अर्थ है हम उनसे प्यार करते हैं जो हमें प्यार नहीं करते। ये कहना था पुष्किन जी का। नई दिल्ली में रशियन हाउस में रूसी भाषा दिवस और महान रूसी कवि पुष्किन की 227वीं जयंती मनाई गई। इस कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय राजधानी के बीचों बीच स्थित एस पुष्किन के स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित करने के समारोह के साथ हुई। कार्यक्रम का अगला हिस्सा नई दिल्ली स्थित रशियन सेंटर फॉर साइंस एंड कल्चर में आयोजित किया गया। दोस्तों, मेहमानों का स्वागत रशियन हाउस के कर्मचारियों और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर सोनू सैनी, इंडियन एसोसिएशन ऑफ टीचर्स ऑफ रशियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर के उपाध्यक्ष डॉक्टर नीलाक्षी सूर्यनारायणन और जेएनयू की स्कूल ऑफ लैंग्वेज लिटरेचर एंड कल्चरल स्टडीज़ में सेंटर फॉर रशियन स्टडीज़ की पूर्व प्रमुख प्रोफेसर रंजना बनर्जी ने की। Few words about the workshop and competition which was held on 3rd of June. This is the fourth event we organized by our Association of Translators in collaboration with Russian House. We had organized a translation competition of Pushkin's verses, Essay's verses, and more prose. That was online and this was the first offline. दोस्तों, इस कार्यक्रम की शुरुआत 3 जून को ही हो गई थी, जिसमें साहित्यिक अनुवाद कार्यशाला का आयोजन किया गया था, जिसमें रूसी से अन्य भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया गया, जिसमें कई लोगों ने भाग लिया और इस प्रतियोगिता के परिणामों की घोषणा 5 जून को रशियन हाउस में की गई। इसके बाद मेहमानों ने पुष्किन की जीवन और उनकी रचनात्मक विरासत पर आधारित एक प्रस्तुति का आनंद लिया, जो कि एक डॉक्यूमेंट्री थी, जिसमें पुष्किन के जीवन से जुड़ी हुई चीज़ों को बहुत ही गहराई से दर्शकों को बताया गया। Okay, hello everyone. Let's a little bit revise the biography and the story about Pushkin. I will tell you a few words, and after that we are going to have a quiz. So I'm sure that those students and those people who are dedicated to studying Russian language, it will be very easy for them. But still, maybe for those who just joined us, if you are attentive, if you listen to the PowerPoint presentation carefully, it will be easy for you to get to give the right answers. And of course, the winners will receive some small nice gifts. Okay, so Alexander Sergeyevich Pushkin, the famous poet, the most famous poet of Russia, the novelist, the playwright, and he is still one of the most loved poets and most famous poets all over the world. He belonged to a family, the roots of which came from the very famous man who served to Tsar Peter the Great, and the name of this man was Abraham Ganibal. Maybe you have heard about him. His father, Sergei Lvovich,
He also belonged to a noble family. He was very interested in literature. He had a huge library in his house. And from the early childhood, Pushkin was very much surrounded by artists, by writers, by poets. So he was raised in a very creative atmosphere, and of course that affected him much. As it was already said, you must be knowing that most of noble people in Russia in 18th century, they mainly spoke French language rather than Russian. The same happened to Pushkin. He learned French much earlier than he learned Russian. And the main effort of teaching him Russian language, his native language, which unfortunately somehow he did not know in his childhood, belonged to his grandmother, Maria Grinbal, and his beloved nanny, Arina Rodionovna. This nanny was very close to the boy. She raised him, she taught him, she spoke in Russian with him because she was a simple village woman. She did not. दोस्तों, इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रशियन हाउस के छात्र छात्राएं रहे, जिन्होंने अपनी प्रस्तुति से लोगों का मन मोह लिया। इन्होंने पुष्किन की कविताओं का प्रस्तुतिकरण किया, जिसमें बेसी, विंटर इवनिंग, आई लव्ड यू, इस तरीके की कविताएं शामिल थीं। और जो ऐसी कविताएं थी जो रूसी साहित्य और क्लासिक का एक अभिन्न अंग बन चुकी हैं। Здравствуйте, меня зовут Мусульман. Меня зовут Пишар. Александр Сергеевич Пушкин. Я памятник себе воздвиг нерукотворный. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Вознесся выше он главою непокорный Александрийского столпа. Меня зовут Amit Kamal. Ludiva Indi знает меня как радиоведущая на All India Radio. Alexander Sergeyevich Pushkin. Basic. Мечтат сатучи, вьют сатучи, не видимкаю луна, освещает снег летучий. Мутна небо, ночь мутна. Еду в чистом поле, колокольчик, дин, дин, дин. Страшно, пони средь невидимые кровни. Эй, пошел! Ямщик, нет, молчи. Конем барин Тесло, вьюга меня слепает очи, все дороги занесло. Спасибо. ही दोस्तों, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ES पुष्किन स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ रशियन लैंग्वेज के प्रतिनिधियों और अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक कार्यक्रम एम्बेसडर ऑफ द रशियन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड के प्रतिभागियों ने भी ऑनलाइन भारतीय दर्शकों को संबोधित किया और विदेशों में रूसी भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली मौजूदा परियोजना के बारे में अपने विचार साझा किए। Good morning, everyone. We are really glad to see you here. Yes, we are ambassadors of the Russian language in the world. Today we want to say some words about our one of the most famous writers, Alexander Sergeyevich Pushkin. दोस्तों, इसके साथ ही पुष्किन एंड द सिल्वर एज नामक एक फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन भी किया गया। इस प्रदर्शनी में उन लेखकों को शामिल किया गया जिन पर पुष्किन का काफी प्रभाव रूस में देखा गया था। दोस्तों, इस कार्यक्रम का समापन दो महान कवियों पुष्किन और भारतीय विचारक व लेखक डॉक्टर रविंद्रनाथ ठाकुर की सांस्कृतिक और बौद्धिक विरासत पर बातचीत के साथ हुआ। इस कार्यक्रम में विश्व संस्कृति के लिए महान रूसी कवियों का क्या योगदान रहा और इन्होंने किस तरीके से पूरे विश्व को प्रेरित किया, उस पर चर्चा की गई। Some more information about how the leadership dialogue will go on now, so please listen to him very attentively. Thank you. दोस्तों, साथ ही इसमें अंतर सांस्कृतिक संवाद के तौर पर रूसी भाषा किस तरीके से काम करती है, उस पर भी चर्चा की गई। Every human heart, let us walk together through his beautiful journey. Rabindranath
Tagore was born on 7th May 1861 at the Jorashako mansion in Kolkata in a wealthy and culturally rich family. From his childhood, तो फ्रेंड्स, ये था आज का रशियन हाउस का रशियन लैंग्वेज डे का इवेंट, जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई। और आरजे अमिता की बात पर आप देखते रहेंगे रशिया और इंडिया से जुड़े हुए कुछ इवेंट्स और जानकारी। इसी के साथ बने रहेगा आरजे अमिता की बात चैनल के साथ, क्योंकि मैं हूँ रशिया की दोस्त आरजे अमिता। इसी के साथ दीजिए इजाज़त। नमस्कार, दस विदानिया।